boiling hot, not spicy. We've just stopped on the side of the road now to get something for Harry's house. Oh, I love watermelon. Look, it's an old school weighing thing. Oh yeah, look. Namaskar, bhai sahab. कितना? 4 को? चार है नहीं हो? Is that 80 rupees? It's 30 rupees per kg. It's 4 kilo. This is how we pay. So you open your camera, scan it. And then you can pay. That is so cool. 120. I don't show the passport. Yeah, don't show any. Paid. Wow. We can't do that, but that is awesome. Dhanyavad bhai sahab. So Harry, I have to tell you, in my first time buying fruit, I got charged 200 rupees for a kilo of grapes. मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास, क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। India's very own Unified Payments Interface, or UPI system, which is emerging as a new global leader in digital payments, may soon see similar success in Africa. India is in talks with several countries in Africa to help them build a UPI-like digital payment system. यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? अब क्यों चाहती है पैसा? आपके पास कुछ शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। I can only take a little. Oh, it's spicy. It's already spicy. So flavorful, guys. This is unlike any other dosa I've ever tasted before. So good. Hey guys, and welcome back to our channel. We are at the famous VV Param Street Food Row in Bangalore. I don't know if I pronounced that right, but this is where all of the street food is, and it is the most famous place, guys. It is a Sunday, and this place is already lit up, guys. I am starving. I'm here to try some street food. Alfonso just woke up from a nap. He just falls asleep in those rickshaws. Let's see if I can find it. I think that's a famous paratha. Let's continue. And there's a guy that squirts the ghee on in a bag, and he's like famous for it. No look. Yeah, it doesn't even have to look at it. He's giving the Italians a run for their money. You see how paper thin that is? Wow. It's like seconds on there, already cooked. Don't put your fingers in there. Yeah. Hey, this guy, he's touching the stove. His arms must be burnt. We're gonna get it with a side. Thank you. Alrighty, let's go. Alfonso, the bread looks so good. I think you're gonna love it. Maybe we'll eat it right here. Here, Alfonso, stay here. Hold that. Oh, everyone's like chit-chatting. I don't even know what they're saying. They're probably selling their product. Okay, look at that crispy bread. Let's take a rip. I'm gonna give some to Alfonso. Woo! It's hot. The chapati. Ooh, Alfonso, here. You can hold it. Can you hold it, or is it too hot? Is it too hot? It's too hot. Okay, let's dive it in. Is this oh, I forgot to mention, guys, this whole street is vegetarian. And this is chickpeas. Mmm.
To be honest, it doesn't look appetizing, but it's so good. It has like cinnamon and a spice to it. Oh, it's got good texture. Not too like watery. It's almost like a stew texture. Ooh, and it's spicy too. Fonzo, this one isn't spicy. You want me to put it in your mouth? Are you still sleeping? We're at the street food place. Here. The bread is good, right? It's so yummy. And we've had some of the best bread in like Italy, Spain. This is so good. दूसरा उसमें मैं एक जो खासकर एक बात जो करना चाह रहा था, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है, उसका जो दायराकार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक वो जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है, और वो जो पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे यह भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी भारत, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? खत्म हो चुकी है। बल्कि देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ उन्होंने बनाया। एक अमीर तरीन आदमी गरीब लोगों की बात कर रहा है, जिस तरह यहां पे कैनेडी साहब थे, जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप अरबपति था, उसने भी गरीब लोगों की बात की। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको कहूं, हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करता है। उसको वादा देता है, आओ रोटी कपड़ा मकान, आज तक उसी के वोट ले रहे हैं। खुद हार्वर्ड ग्रेजुएट दे कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ वोट ले रहे हैं। सिर्फ, बल्कि मैं सब आज भी आपको 5 से 10 हजार लोग हैं, बल्कि मैं छोटी सी, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा था, खुदारा ये तुम्हारी जो 5 से 10 हजार लोग हैं, $17.4 बिलियन पर साल पर ईयर इनके लल्लो तल्लों पे खर्च हो रहा है रूलिंग एलीट के। 1.5 लाख सरकारी गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, और $17.4 बिलियन आपके आधा बजट है। ये सिर्फ आपके अफसरान मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त घरों, मुफ्त नौकरों में खा जाते हैं। सर, आप जानते हो कि मुर्तजा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के हैं, और उनका कहना है कि जी जो पेट्रोल महंगा हुआ है उससे तो अमीर आदमी को फर्क पड़ेगा कि मतलब उसकी खिंचाई होगी या उसके पैसे खर्च होंगे। गरीब तो 50 रुपए का पेट्रोल लेते हैं बकौल उनके, कि गरीब आदमी को कुछ होगा ही नहीं। ये हाल है इनका पीपल्स पार्टी वालों के दिमाग का। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जी हमने V8 गाड़ियां चलानी है, हम पे फर्क पड़ेगा। गरीब आदमी तो पहले साइकिल पर है, उसको तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल उन्होंने इसी तरह फरमाया था। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में से गुर्बत खत्म कर देंगे, बस किस तरह गरीबों को मार देंगे। ये तो बिल्कुल वही बात की उन्होंने।
कहते आपके सर में दर्द है तो सर काट दें आप। ये वही इन्होंने हल बताया।